नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। हाउ हिमाचल प्रदेश मैप ट्रांसफॉर्म्ड ओवर टाइम 1948 टू 1972। समय के साथ हिमाचल प्रदेश का मानचित्र कैसे बदला 1948 से 1972। In this video, we attempt to analyze and understand the changes in the map of Himachal Pradesh over time from 1948 up to 1972. इस वीडियो में हम 1948 से 1972 तक हिमाचल प्रदेश के मानचित्र में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैप 1, पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। मानचित्र 1, भारत में हिमाचल प्रदेश की स्थिति। This map highlights Himachal Pradesh's location in the national context in 1961 and provides insights into its geographical and administrative position at that time. यह मानचित्र 1961 में राष्ट्रीय संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर प्रकाश डालता है तथा उस समय की उसकी भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। This map of India from 1961 shows the position of Himachal Pradesh marked distinctly on the northern part of the country. Major state boundaries, union territories, and capitals are clearly labeled for context. यह 1961 का भारत का नक्शा हिमाचल प्रदेश की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। राज्य सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां स्पष्ट रूप से चिन्हित की गई है। Himachal Pradesh is highlighted as a small administrative entity in northern India, bordered by Punjab to the west, Uttar Pradesh to the south, and Jammu and Kashmir to the north. हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत में एक छोटे प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है जो सीमाएं साझा करता है पंजाब के साथ पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण में और जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर में। At this time, that in 1961, Himachal Pradesh was a union territory with Shimla as its administrative headquarters. इस समय यानी 1961 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका प्रशासनिक मुख्यालय शिमला था। The map also highlights how the territory was smaller compared to its current expanse as further reorganization took place later. मानचित्र यह भी दर्शाता है कि वर्तमान विस्तार की तुलना में यह क्षेत्र कितना छोटा था क्योंकि बाद में इसका पुनर्गठन किया गया। मैप 2, हिमाचल प्रदेश। Changes in administrative boundaries 1951 to 1961। मानचित्र 2, हिमाचल प्रदेश। प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन 1951 से 1961। In this map, we explore the administrative boundary changes in Himachal Pradesh between 1951 and 1961. The map highlights key developments during the transformative decade. इस मानचित्र में हम 1951 से 1961 के बीच हिमाचल प्रदेश की
प्रशासनिक सीमाओं में हुए बदलाव का अध्ययन करेंगे। यह नक्शा उस दशक में हुई प्रमुख घटनाओं को दर्शाता है। In this map, international boundaries, state boundaries and district boundaries are clearly marked. इस मानचित्र में अंतरराष्ट्रीय, राज्य और जिला सीमाओं को भी दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश was born on April 15, 1948 as a chief commissioner's province in independent India. हिमाचल प्रदेश का जन्म 15 अप्रैल 1948 को स्वतंत्र भारत में एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हुआ था। हिमाचल प्रदेश at that time was constituted into 4 districts with चंबा, महासू, मंडी and सिरमौर। उस समय हिमाचल प्रदेश 4 जिलों में विभाजित था, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। Out of these 4 districts, the 3 districts of Sirmaur, Mahasu and Mandi formed a continuous tract and hence a major part of Himachal Pradesh, while Chamba, its 4th district, was a minor tract by itself, in between which and the Mandi district were parts of Kullu and Kangra tehsils of the Kangra district of then पंजाब स्टेट। इन 4 जिलों में से 3 जिले सिरमौर, महासू और मंडी एक साथ यानी एक साथ जुड़े हुए क्षेत्र थे और इसलिए हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा थे, जबकि इसका चौथा जिला चंबा अपने आप में एक छोटा क्षेत्र था, जिसके और मंडी जिले के बीच तत्कालीन पंजाब राज्य के कांगड़ा जिले के कुल्लू और कांगड़ा तहसीलों के हिस्से थे। In 1951, हिमाचल became a Part C state. 1951 में हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य बनाया गया। On July 1st, 1954, the neighboring Part C state of Bilaspur was integrated with Himachal Pradesh and it was converted into a district, thereby adding one more district to Himachal Pradesh, taking the total number of districts to 5. 1 जुलाई 1954 को पड़ोसी भागसी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में एकीकृत कर दिया गया तथा इसे एक जिले में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश में एक और जिला जुड़ गया तथा जिलों की कुल संख्या 5 हो गई। This Bilaspur district is shown in the map as the shaded area. बिलासपुर जिले को मानचित्र में छायांकित क्षेत्र यानी शेडेड एरिया के रूप में दर्शाया गया है। On 1st November 1956, हिमाचल प्रदेश became a union territory. 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। On 1st May 1960, the border Chini Tehsil of Mahasu district was carved out as a separate administrative unit and district Kinnaur was formed, raising the total number of districts to 6. 1 मई 1960 को महासू जिले की सीमावर्ती चीनी तहसील को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाया गया और किन्नौर जिले का गठन किया गया, जिससे जिलों की कुल संख्या 6 हो गई। This Kinnaur district is represented by the hedged areas
in the map. किन्नौर जिले को मानचित्र में क्रॉस हैचिंग वाले क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है. The international boundary with China is prominently marked with Kinnaur district bordering Tibet, China. चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित है, जिसमें किन्नौर जिला तिब्बत यानी चीन की सीमा से लगा हुआ है. मैप 3 हिमाचल प्रदेश. Changes in administrative boundaries 1961 to 71. मानचित्र 3 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन 1961 से 1971. In this map of Himachal Pradesh showing the changes in administrative boundaries between 1961 to 71, we shall analyze the changes in boundaries, the areas transferred, and the creation of new subdivision between 1961 to 71. 1961 से 71 के बीच प्रशासनिक सीमाओं में हुए परिवर्तनों को दर्शाने वाले हिमाचल प्रदेश के इस मानचित्र में हम 1961 से 71 के बीच सीमाओं में हुए परिवर्तनों, स्थानांतरित क्षेत्रों और नए उपमंडलों के निर्माण का विश्लेषण करेंगे. On 1st November 1966, based on recommendation of the Punjab Boundary Commission, the Government of India reorganized Punjab into two separate states, Punjab and Haryana, and integrated the Punjab hill areas with Himachal Pradesh under the provision of Punjab Reorganization Act 1966. 1 नवंबर 1966 को पंजाब सीमा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पंजाब को दो अलग अलग राज्यों पंजाब और हरियाणा में पुनर्गठित किया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के साथ एकीकृत किया. These hill areas included the district of Kangra, Shimla, Kullu and Lahaul Spiti. इन पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल थे जिले कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति. नालागढ़ एरियाज ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट, अंबाला जिले का नालागढ़ क्षेत्र, पार्ट्स ऑफ ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड होशियारपुर जिले की ऊना तहसील के कुछ हिस्से और पार्ट्स ऑफ पठानकोट तहसील ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील के कुछ हिस्से. Consequent to these mergers, 4 new districts were constituted in Himachal Pradesh, viz. Kullu, Lahaul and Spiti, Kangra and Shimla. These new districts are shown as the green shaded areas in the map. इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में 4 नए जिले अर्थात कुल्लू, लाहौल और स्पीति, कांगड़ा और शिमला का गठन किया गया. इन नए जिलों को मानचित्र में हरे रंग से छायांकित क्षेत्रों के रूप में दिखाया गया है. ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 to 10. इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई. Besides this, Nalagarh Tehsil with its 688 villages and Nalagarh town, which was a part of the then Ambala district of Punjab, was included
in Shimla district after its transfer to Himachal Pradesh in 1966. This is also shown in the map in green shaded area and is circled with red pen in the map. इसके अतिरिक्त नालागढ़ तहसील अपने 688 गांवों और नालागढ़ कस्बे के साथ, जो कि तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले का हिस्सा था, को 1966 में हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने के बाद शिमला जिले में शामिल कर दिया गया। इसे भी मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र में दर्शाया गया है तथा मानचित्र में लाल पेन से घेरा बनाया गया है। The 290 villages and Una town of Una Tehsil of Hoshiarpur, district of Punjab, transferred to Himachal Pradesh were included in Kangra district. This is also shown in the map in green shaded area and is circled with orange pen in the map. पंजाब के होशियारपुर जिले की ऊना तहसील के 290 गांवों और ऊना कस्बे को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर कांगड़ा जिले में शामिल किया गया। इसे भी मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र में दिखाया गया है तथा मानचित्र में नारंगी रंग के पेन से घेरा बनाया गया है। The three towns of Gurdaspur district of Punjab, namely Dalhousie MC Municipal Committee, Dalhousie CB Cantonment Board and Baklahor CB Cantonment Board, were transferred to Himachal Pradesh and incorporated into the Bhatiyar Tehsil of Chamba district. This is also shown in the map in green shaded area and circled with blue pen in the map. पंजाब के गुरदासपुर जिले के 3 कस्बों अर्थात डलहौजी एमसी नगर समिति, डलहौजी सीबी छावनी बोर्ड और बकलहो सीबी छावनी बोर्ड को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और चंबा जिले की भटियात तहसील में शामिल कर दिया गया। इसे भी मानचित्र में हरे रंग से छायांकित क्षेत्र में दर्शाया गया है तथा मानचित्र में इसे नीले पेन से घेरा गया है। मैप 4 हिमाचल प्रदेश, मैप शोइंग 10 districts at the time of grant of statehood on 25th January 1971। मानचित्र 4 हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिए जाने के समय 10 जिलों को दर्शाता मानचित्र। The state of Himachal Pradesh came into being on 25th January 1971 as the 18th state of the Union of India। हिमाचल प्रदेश राज्य 25 जनवरी 1971 को भारत संघ के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। At that time, the number of districts in Himachal Pradesh was 10। उस समय हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 10 थी। These districts were, ये जिले थे चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, महासू, किन्नौर और सिरमौर। मैप 5 Position of Himachal Pradesh in India in 1971। मानचित्र 5 1971 में भारत में हिमाचल प्रदेश की स्थिति। This map shows the position of Himachal Pradesh in India in 1971 at the time of grant of statehood
to Himachal Pradesh as the 18th state of the Union of India. यह मानचित्र 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत संघ के 18वें राज्य के रूप में राज्य का दर्जा दिए जाने के समय भारत में हिमाचल प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है। Himachal Pradesh shared its borders with neighboring states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir. हिमाचल प्रदेश की सीमा पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के साथ लगती है। Two districts of Himachal Pradesh, with Kinnaur and Lahaul Spiti, share international border with China, Tibet. हिमाचल प्रदेश के दो जिले किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति चीन, तिब्बत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। मैप 6 हिमाचल प्रदेश changes in administrative boundaries 1971 to 81। मानचित्र 6 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन 1971 से 81। In this map, we will discuss the administrative boundary changes in Himachal Pradesh from 1971 to 1981। इस मानचित्र में हम 1971 से 1981 तक हिमाचल प्रदेश में हुए प्रशासनिक सीमा परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। On 1st September 1972, two more districts with Hamirpur and Una were created by trifurcation of Kangra district. These two new districts are shown as brown diagonal shaded areas in the map। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिले को 3 भागों में विभाजित करके हमीरपुर और ऊना नामक 2 और जिले बनाए गए। इन 2 नए जिलों को मानचित्र में भूरे रंग के विकर्ण छायांकित क्षेत्रों के रूप में दिखाया गया है। In addition, on 1st September 1972, Mahasu and Shimla districts were reorganized as Shimla and Solan district। इसके अतिरिक्त 1 सितंबर 1972 को महासू और शिमला जिले को शिमला और सोलन जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। Erstwhile Mahasu district, excluding Arki and Solan tehsils, was renamed as Shimla district, and the Shimla sub-tehsil included the Shimla town of the erstwhile Shimla district were merged with it। पूर्ववर्ती महासू जिले अर्की और सोलन तहसीलों को छोड़कर का नाम बदलकर शिमला जिला कर दिया गया तथा पूर्ववर्ती शिमला जिले के शिमला शहर सहित शिमला उप तहसील को इसमें मिला दिया गया। Erstwhile Shimla district, excluding Shimla sub tehsil and Shimla town, was renamed as Solan district, and the Arki and Solan tehsil of Old Masu district were merged with it। The new district of Solan is shown as brown diagonal shaded areas in the map। शिमला उप तहसील और शिमला शहर को छोड़कर पूर्ववर्ती शिमला जिले का नाम बदलकर सोलन जिला कर दिया गया और पुराने मासू जिले की अर्की और सोलन तहसीलों को इसमें मिला दिया गया। नक्शे में सोलन के नए जिलों को भूरे रंग के विकर्ण छायांकित क्षेत्रों में दिखाया गया है। Thus, in 1972, the number of districts in Himachal Pradesh became 12।
इस प्रकार 1972 में हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 हो गई। मैप 7, मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश शोइंग 12 डिस्ट्रिक्ट्स। मानचित्र 7, हिमाचल प्रदेश का मानचित्र जिसमें 12 जिले दर्शाए गए हैं। In this map, we will see the location of each of the 12 districts constituting हिमाचल प्रदेश। इस मानचित्र में हम हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से प्रत्येक का स्थान देखेंगे। These districts were, यह जिले थे चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, शिमला, किन्नौर और सिरमौर। मैप 8, पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया 2011। मानचित्र 8, भारत में हिमाचल प्रदेश की स्थिति 2011। This map shows the position of Himachal Pradesh in India in 2011. This is the latest map used by us in this video. यह मानचित्र 2011 में हिमाचल प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है। यह इस वीडियो में हमारे द्वारा प्रयुक्त नवीनतम मानचित्र है। The position of Himachal Pradesh in India in the map of 2011 shows Himachal Pradesh bordering the neighboring states of Punjab, Haryana, Uttarakhand, formed by bifurcation of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir, latter bifurcated in 2019 into the Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. भारत में हिमाचल प्रदेश की स्थिति 2011 का मानचित्र हिमाचल प्रदेश को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभाजन से बना। उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, जिसे बाद में 2019 में लद्दाख और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, की सीमा से सटा हुआ दिखती है। मैप 9, हिमाचल प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स 2011। मानचित्र 9, हिमाचल प्रदेश, प्रशासनिक प्रभाग 2011। This map shows the administrative divisions of Himachal Pradesh in 2011. यह मानचित्र 2011 में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक प्रभागों को दर्शाता है। There has been no changes in the number of districts since 1972. The number of districts is same, that is 12. 1972 के बाद से जिलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिलों की संख्या समान यानी 12 है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी एक और नया वीडियो। तब तक आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।